students, our topic is molecular analysis of shoot apical meristem. Molecular analysis in shoot apical meristem have been done in many plants like Arabidopsis, maize, tobacco, tomato, and rice. Many of these belong to classes of considered to be regulatory, controlling the expression of downstream genes. To studying the shoot apical meristem, we have isolated the mutants of the impaired meristem's activity in the embryo. Mutant seedlings of Arabidopsis, designated as shoot meristemless and joile, do not express the differentiated characteristics of a shoot apical meristem. Initiation of the meristem is blocked at the torpedo-shaped stage of the mutant embryos. The rest of the seedlings, especially the root, hypocotyle, and cotyledons, appear normal, but no new organs develop between the cotyledons. Invaluable information on the origin, organization, and function of shoot meristem has come from genetic and molecular studies of Arabidopsis thaliana and a few other plants such as maize. The primary shoot apical meristem in Arabidopsis is reported to become apparent relatively late in embryogenesis after the cotyledons are initiated. The shoot apical meristem is initiated in the mid-globular embryo itself in the form of epiphysis. The earliest indication of the shoot apex is the appearance of a pocket of meristematic cells in the upper half of the globular embryo. These cells are the direct descendants of the 8-celled proembryo. Clear structural and cytological and cytochemical differences exist between these progenitors of the apical meristem and the surrounding cells. These differences occur before the shoot apex is enclosed by the cotyledons, suggesting that the latter are the first formating organ produced by the embryonic apex. The visibility of the shoot apex is invariably associated with a change in the shape of the embryo from globular to chordate, and this changes is attributed to the continued meristematic activity of the surface layer and the underlying cells in the shoot apical part of the embryo. Differentiation of the shoot apical meristem stops when the embryonic apex becomes dome-shaped and often enters into a dormant state or quiescence in the seeds. अगर हम शूट अपेक्स मेरिस्टम के अंदर अगर हम लोग मेरिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूलर एनालिसिस करते हैं मॉलिक्यूल लेवल पे, तो हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से जीन्स की जब हम स्टडी करते हैं तो जो म्यूटेशंस होते हैं प्लांट्स के अंदर, तो म्यूटेशंस क्या होता है? सडन चेंज इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ ए प्लांट या ऑर्गेनिज्म। तो जो चेंजेस के कारण उसके अंदर क्या होगा, क्या चीजें हो रही है। तो अगर हमें प्लांट्स के एम्ब्रियो के अंदर है, जैसे कि शूट एपिकल मेरिस्टम है, उसके जो एम्ब्रियोस है उनमें जो म्यूटेंट्स होते हैं उनको स्टडी करने से हम ये पता करते हैं कि इसके म्यूटेशन के कारण इसके अंदर जो कैरेक्टर था वो नहीं हो रहा है। तो उसकी स्टडी के लिए हम लोग जितने भी म्यूटेंट, जिनमें भी सीडलिंग में म्यूटेशन हो चुका है, ऐसे म्यूटेंट्स को हम चुनते हैं। तो जो डिफरेंट स्टेजेस है, जैसे कि जो एम्ब्रियो की है 8 सेल स्टेज, उसके अंदर एपिकल मेरिस्टम होना शुरू हो जाता है। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि कौन सी अवस्था में कौन सा ऐसा जीन है जिसके कारण कि इसके अंदर ये विभेदन पाया गया है शूट एपिकल मेरिस्टम में। तो जो पहले हम लोग जो
स्टडी कर रहे थे वो हम लोग कर रहे थे स्ट्रक्चरल बेसिस पे कि इसका क्या क्या स्ट्रक्चर है शूट एपिकल मेरिस्टम का, कौन कौन सी लेयर्स है इसके अंदर। तो वो हम करते हैं सर्जिकल एक्सपेरिमेंट्स है या उनके आधार पे हमने उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट के देख लिया या ट्रांसफर सेक्शन काट के देख लिया कि इसके अंदर ये सेल लेयर्स हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे जैसे कि हम जीन्स का पता लगाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन है, उस हिसाब से हम लोग इसका मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल्स हैं या जैसे है जिनसे आधार पर हम इसका जो जीन्स है कौन सा जीन्स इसके अंदर है और कौन सा नहीं है। तो जो इनिशिएशन ऑफ शूट मेरिस्टम स्टेम सेल्स इन अरेबिडोप्सिस एम्ब्रियो एंड ऑर्गेनाइजिंग सेंटर प्रीकर्सर होता है सेल लीनिएज एक्सप्रेसिंग WS रेड इज एस्टैब्लिश्ड इन द 4 सब एपिडर्मल सेल्स ऑफ द 16 सेल एम्ब्रियो। तो ये जो 16 सेल एम्ब्रियो है यहाँ पे जो रेड जोन दिख रहा है यहाँ पे वो WS जो जीन है वो यहाँ पे हमें दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग सेंटर से। और ये जब एम्ब्रियो 16 सेल जब 16 है उसके अंदर कोशिका विभाजन की अवस्था में होता है तो ये जो सब एपिडर्मिस नीचे वाला जो L2 लेयर है यहाँ पे हमें ये जो सब एपिडर्मल पार्ट है यहाँ पे ये हमें ऑर्गेनाइजिंग सेंटर दिखाई देता है। स्टेम सेल्स आर इंड्यूस्ड इन हार्ट स्टेज एम्ब्रियोज, और ये जो हार्ट स्टेज एम्ब्रियो है यहाँ पे हमें स्टेम सेल्स दिखाई देते हैं। However, in many plants, including many legumes, the shoot apical meristem of the embryo is very active and produces a number of leaf primordia. Even before germination, the differentiation of the shoot apical meristem in the embryo makes obvious the pre-existing cryptic polarity of the latter. किन्हीं प्लांट्स में जो शूट एपिकल मेरिस्टम होता है काफी ज्यादा एक्टिव होता है और वो काफी सारे कैसा होता है एक्टिव है कि इसके अंदर काफी सारे लीफ प्राइमोर्डिया उसके अंदर से निकलते हैं जर्मिनेशन से पहले। तो ये जो है कि जो हम कहते हैं कि जो एम्ब्रियो है जिसमें कि एक पोलैरिटी होता है कि 2 पार्ट होते हैं, एक तो वो जिसमें कि शूट निकलता है और एक नीचे होता है रूट। ये पोलैरिटी जो एम्ब्रियो में बनती है उसको हम उसके कारण उसके अंदर पोलैरिटी डेवलप होती है। तो ये जो एम्ब्रियो है उसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं, जैसे 16 सेल अर्ली ग्लोबुलर, इसमें ग्लोबुलर अवस्था है, ये लेट ग्लोबुलर स्टेज है, ये ट्रांजिशन स्टेज है, ये हार्ट शेप्ड स्टेज और टॉर्पिडो स्टेज। अलग अलग जो स्टेजेस होती है एम्ब्रियो की जिनमें कि सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के कारण में जो उसका जो आकार होता है उसमें अंतर आता है। तो याद है कि छोटा आकार में है, जैसे सेल की जैसे जैसे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे एम्ब्रियो के आकार में परिवर्तन होता जाता है, तो उसको हम लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ जब 16 सेल की स्टेज होती है तो यहाँ पे ये वुश जीन का एक्सप्रेस होता है एम्ब्रियो के अंदर। ये देखिए इसमें हम लेयर बता रहे हैं, जो लेयर्स दिख रही है कहाँ पे हो रहा है। फिर उसके बाद में ये COC2 है, ये जीन एक्सप्रेस होता है कप शेप में इसके साइड्स में। ये STM है, ये एक्सप्रेस हो रहा है यहाँ पे। ऊपर ये हो रहा है इंडक्शन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ CLV3 एट द लेट हार्ट शेप स्टेज। तो ये अलग अलग जीन्स है, जैसे बीच में CLV3 है, उसके बाहर STM है, ये COC2 है, और ये बाहर की साइड में जो कॉटलिडन्स होते हैं वो दिखाई दे रही है, इसका अबैक्सियल सरफेस है और ये इसकी अडेक्सियल सरफेस है। तो ये तो ऊपरी सतह और निचली सतह है। अब ये जो बाद की जब स्टेज में जो सेंट्रल जोन है यहाँ पे आप देखिए CLV3 जो दिखाई दे रहा है और ये रिब जोन है, ये इसका पेरिफेरल जोन है, साइड वाला शूट एपिकल मेरिस्टम का। Many types of genes are likely to be important in the formation and maintenance of shoot apical meristem. तो शूट एपिकल मेरिस्टम के लिए अलग अलग जीन्स की आवश्यकता होती है। The additional classes of transcriptional factors are found to be responsible for it. तो हम जब
मॉलिक्यूलर एनालिसिस करते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम का, जिसके कारण कि शूट बनता है, हम देखते हैं कि इसमें अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो रेस्पॉन्सिबल है। तो फर्स्ट है होम्योडोमेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर encoded by WUS is expressed in the subapical region as early as 16 cell stage. The Wuschel gene is additionally required for the maintenance of initial function. In WUS mutants, the initials undergo differentiation and no longer remain as initials. तो जब हम देखते हैं कि जो वुशल जीन जो जरूरत होती है कि वो हमारे जो इनिशियल जो होता है शूट एपिकल मेरिस्टम का, उसकी आरंभिक जो कोशिका होता है उसको बनाए रखने में जिसका योगदान होता है वो होता है वुशल जीन का। WUS जीन भी बोलते हैं हम उसको शॉर्ट फॉर्म में। अगर हम ये जो WUS म्यूटेंट्स को अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो इनिशियल अंडरगो डिफरेंशिएशन एंड नो लॉन्गर रिमेन्स एज इनिशियल। तो इसमें अगर म्यूटेशन हो जाता है इस जीन के अंदर, तो जो WS म्यूटेंट्स में जो उसका जो आरंभिक कोशिका का फंक्शन है कि एक आपकी कोशिका में विभाजन होना और एक मेंटेन करना उसको, तो वो नहीं हो पाता है। तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो reported to begin at the 16-celled stage of the embryo in advance of STM expression। तो जो WS जो जीन होता है वो जो STM जीन है उससे पहले ही ये कोशिका आरंभ में आ जाता है, उसका एक्सप्रेशन में दिखाई देता है। In the fully developed shoot apical meristem, WUS expression is restricted to a small group of central cells between the L3 layer। तो ये जो इसका एक्सप्रेशन में कहाँ दिखता है, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ, जो अगर फुली डेवलप्ड अगर हम मेरिस्टम की बात करते हैं तो हमें इसका एक्सप्रेशन कहा जाता है L3 लेयर के अंदर, जो कि इनिशियल लेयर होती है कॉर्पस की। एंड दिस एक्सप्रेशन परसिस्ट थ्रू आउट द शूट। तो यहाँ देख रहे हैं आप वुशल जीन है जो एम्ब्रियो के यहाँ पे आपको एक्सप्रेस होता हुआ दिख रहा है। कप शेप्ड कॉटलिडन्स, ये जो कप शेप्ड कॉटलिडन्स है सी जो बोलते हैं सी, ये 3 तरह की होती है 1, 2 एंड 3। तो लेट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन स्टेज फैक्टर्स ऑफ द, ये नेक क्लास के हैं, ये जो है जीन्स है ये 1, 2 एंड 3 cup shaped cotyledons CUC 1, 2 and 3 are expressed in an apically position strip between the two developing cotyledons। तो साइड में इसकी ये जो cotyledons ये डेवलप हो रही है और इसमें ये CUC2 का हमें एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है। Finally, during the heart stage, this sequence of gene activation concludes as another class of homeodomain transcription factors encoded by the shoot meristemless। तो यहाँ पे देखिए जो हार्ट स्टेज है इसमें अनदर जीन एक्टिवेट होता दिखाई दे रहा है, जो कि कौन सी क्लास का है, होम्योडोमेन क्लास का है, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एनकोडेड बाय, इसको हम बोलते हैं शूट मेरिस्टेमलेस जीन। जो शूट मेरिस्टेमलेस जीन है इना ये एक्सप्रेस होता है, यहाँ पे आपको देखिए दिख रहा है विद इन द COC एक्सप्रेशन, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी शूट मेरिस्टेमलेस जीन इसका क्या फंक्शन है, इन अरेबिडोप्सिस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द शूट एपिकल मेरिस्टम रिक्वायर द एक्टिविटी ऑफ शूट मेरिस्टेमलेस। ये जो है शूट मेरिस्टेमलेस जीन की, इसकी जब ये होगा उसके कारण ही, इसकी एक्टिविटी के कारण ही जो अरेबिडोप्सिस उसमें शूट एपिकल मेरिस्टम इस्टेब्लिश होता है। जो STM जीन बोलते हैं शॉर्ट में हम, इसके कारण विच इज एक्सप्रेस्ड इन 1 or 2 cells of the late globular stage embryo। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाता है, अगर STM जीन्स रेस्पॉन्सिबल होता है शूट में मेरिस्टम डेवलप करने के लिए, अगर इसका
अंदर म्यूटेशन आ जाता है तो जो भी प्लांट्स हैं जिनमें कि म्यूटेशन हुआ है उनमें स्टेम, ये जो शूट मेरिस्टम लेस वाला फंक्शन जो है वो नहीं होगा, और उनमें जो सीडलिंग्स होंगे उनके अंदर सब कुछ बनेगा, जैसे नॉर्मल रूट्स बनेंगी, हाइपोकोटाइल बनेगा, कॉटलिडन्स बनेगा, लेकिन उनके अंदर शूट एपिकल जो मेरिस्टम है उसका अभाव होगा। STM messenger RNA is shown to be present in the central and peripheral zones of all the adult vegetative shoot apices, but is absent in developing foliar primordia. अगर हम STM मैसेंजर RNA को देखते हैं तो ये देख कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल जोन जो होते हैं वेजिटेटिव वहां पे प्रेजेंट होता है, बट जो foliar primordial रीजन है वहां पे ये एब्सेंट होता है. While this mutant also does not express the differentiated characteristics of a shoot apical meristem, in that the initiation of the meristem is blocked at the torpedo-shaped stage of the mutant embryo. This mutant, ये ज्वाइल है, also does not express the differentiated characteristics of a shoot apical meristem, in that the initiation of the meristem is, इसमें क्या होता है, ये भी अरेबिडोप्सिस पे पाया गया है, लेकिन इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है शूट एपिकल मेरिस्टम वो कहाँ ब्लॉक हो जाता है, टॉर्पिडो शेप में जब आता है एम्ब्रियो तब ये ब्लॉक हो जाता है, तो ये एक ज्वाइल म्यूटेंट है. तो इसके अंदर शूट एपिकल मेरिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक है टॉर्पिडो स्टेज में नहीं दिखाई, बंद होना आगे के ये बंद हो जाता है. A well-defined shoot apical meristem is also absent in the birds regenerated on the cultural explants of the STM mutants, indicating that genes possibly also juvenile controls both embryonic and adventitious shoot apical meristem. अगर हम बात करते हैं well-defined shoot apical meristem की, तो हाँ एब्सेंट होती है बर्ड्स रीजनरेटेड ऑन द कल्चरल जो एक्सप्लांट्स है STM म्यूटेंट्स के, indicating the gene possibly controls both the embryonic and adventitious. Pinhead, a closely similar mutations called pinhead, affects only the shoot apical meristem during embryogenesis and the axillary bud meristem, but not the meristem formed from the explants. अगर पिन हेड म्यूटेशन हो जाता है एम्ब्रियो सीडलिंग्स के अंदर, जो भी इसका अरेबिडोप्सिस का जो एम्ब्रियो है तो वो सिर्फ अफेक्ट करता है एपिकल शूट मेरिस्टम ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस एंड द एक्सिलरी बड मेरिस्टम, बट जो कल्चर एक्सप्लांट्स होते हैं उनको अफेक्ट नहीं करता है. WUS एंड STM ये दोनों ही जरूरी होते हैं growth and differentiation of the shoot tissues with the production of new undetermined cells को production करने के लिए. The expression of CUC-like genes in the central apical domain of the embryo provides an environment that enables further patterning processes, including the localized expression of the STM gene, which initially coincides with the strip-like CUC expressed domain, but later becomes focused in a central circular domain. This expression depends on the CUC gene activity, since STM expression does not occur in CUC mutant embryos. Thank you.